پھیر لیا وقالا یا اسفا علی یوسف، ہائے یوسف کہہ کر رونے لگے، یا اسفا علی یوسف، ہائے یوسف کہہ کر روتے تھے۔ کتنے روئے؟ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یہاں تک کہ آنکھوں میں آنکھیں سفید ہو گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ دنیا کہتی ہے مت رو، رونا بے صبری کی علامت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، رونا بے صبری کی علامت ہے، مت رو۔ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تیرا یعقوب اتنا رویا ہے، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اے اللہ تو نے اپنے یعقوب کو صبر والا کہا ہے یا بے صبرا کہا ہے؟ قرآن پکار کے کہتا ہے فَهُوَ قَدِيرٌ، بڑا ضبط کرنے والا ہے، بڑا صابر ہے میرا یعقوب نبی، بڑا صبر کرنے والا ہے، بڑا صبر کرنے والا ہے۔ تو یہاں اللہ دستور دے رہا ہے کہ مظلوم کے غم میں رونا عین صبر ہے، اور رونے پر بدعت کے فتوے دینا یہ بے صبری ہے۔ بے صبری بدعت کے فتوے دینا ہے۔ تو میرے معزز سامعین، آپ عزاداری کر رہے تھے جلوس میں، قبول کرے عزاداری خالق کائنات آپ کی عزاداری کو۔ غم مظلوم کے غم میں آپ گریہ کر رہے تھے، عزادار رو رہے تھے، نوحے پڑھ رہے تھے، ماتم کر رہے تھے، چہرے سے آثار نمودار ہوں۔ خدا شاہد ہے، میں طالب علم کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں، یہ سوچیں کہ ہمارا چاہنے والا ہے یا نہیں، اہل بیت کا غم تو منا رہا ہے۔ سارے عزادار متحد ہو کر چہرہ ایسے غمگین ہو تاکہ کوئی دوسرا دیکھے تو دور سے سمجھ جائے یہ کسی مظلوم کے غم میں باہر آئے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ پیغامات ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں۔ تو اب میرے معزز سامعین، یہ ہمیں کہتے ہیں آپ کب تک روئیں گے، کب تک آپ گریہ کرتے رہیں گے؟ یہی سوال حضرت یعقوب کے بیٹوں نے کیا تھا۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسفا حتی تکون حرزا او تکون من الحالکین، بابا کب تک آپ یوسف کی مظلومیت پر روئیں گے؟ کب تک؟ میرا ساتھ دے گے تو بات آگے بڑھے گی۔ توجہ چاہتا ہوں، بابا آپ کب تک روئیں گے یوسف کی مظلومیت پر؟ کب تک روتے رہیں گے؟ کیونکہ انہیں پتا تھا اگر بابا اس طرح روتے رہے تو ہمارے جرم کا پتہ چل جائے گا۔ دشمن آپ سے کیوں کہتا ہے کب تک پیٹتے رہو گے، کب تک آنسو بہاتے رہو گے، کب تک اس طرح جلوس نکالتے رہو گے؟ انہیں پتا ہے اہل بیت کے چاہنے والے اس طرح روتے رہے، اس طرح جلوس نکالتے رہے، اس طرح ماتم کرتے رہے، ہمارے باپ دادا کے جرم کا پتہ چل گیا۔ جرم کا پتہ چل جائے گا، کیونکہ انہیں پتا ہے۔ تو اب قرآن بتا رہا ہے قالوا تاللہ، قسمیں اٹھا کر، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں بابا مت رو۔ ملا بھی کہتا ہے تمہیں اللہ کی قسم ہے مت رو، روکتا ہے تمام ہمارے سنی شیعہ بھائیوں کو کہ عزاداری میں مت جاؤ، تمہیں اللہ کی قسم ہے۔ پتا چلا جو مجرم کا ساتھی ہوگا وہ مظلوم کے حمایتوں کی طرف جانے نہیں دے گا، جو مجرم کا ساتھی ہوگا، ارے جو یزید کا جو طرفدار ہوگا وہ کبھی نہیں چاہے گا حسین کی عزاداری میں کوئی جائے۔ بھائی یہ خطاب تمام سنی شیعہ بھائیوں کے لیے ہے۔ ظاہر ہے دو طاقتوں میں سے ایک حق پہ ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ جو بھی یزید کا طرفدار ہوگا اسے پتا ہے کہ اگر ہمارا والا کوئی ادھر چلا گیا وہ تو ہور بن جائے گا، دوبارہ تو آئے گا بھی نہیں۔ میرے معزز سامعین، رونے کا اور گریہ کرنے کا فلسفہ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں 10 بس عرض کر رہا ہوں کہ اتحاد اتنا برقرار رکھیں، کوئی کسی کو موقع نہ دے۔ دشمن کو چاہتا ہے نا اہل بیت کا چاہنے والا ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو جائیں، ایک دوسرے سے لڑیں، ایک دوسرے سے تضاد میں آئے۔
दुश्मन को कभी मौका ना दें। दुश्मन चाहता है आप मोमिन आजादार ये सोचें मजलूम का गम है, फमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल कुलूब, क्योंकि ये अल्लाह की आजादारी निशानी है। तो अल्लाह की निशानी ये है इसके अदब में सारे आजादार एक हो जाएं। मैं ना समझता एक छोटा सा समझा भाई, मैं तालिब इल्म की हैसियत से अर्ज कर रहा हूँ, भले आप मुझे नहीं पढ़ाए कभी भी, क्योंकि दुनिया बड़ी वसी है। मैं बहरहाल यहाँ दौड़ के तमाम मोमिन, तमाम सुन्नी शिया भाइयों से दस्तबस्तार कर रहा हूँ, नाम हुसैन को देखें, मजलूम की मजलूमियत देखकर अपने इख्तिलाफात भुला दें, क्योंकि हदफ बड़ा है। आपको पूरी दुनिया की ताकत की, जदीदियत की ताकत से लड़ना है। आप पूरी दुनिया की जदीदी ताकत से मुकाबला कब करेंगे? जब सारे या हुसैन कहने वाले सुन्नी शिया भाई मिलकर एक हो जाए, क्योंकि जदीदी ताकतें वो इस्लाम के खिलाफ हैं। तवज्जो चाहता हूँ, बाबा कब तक रोएंगे? कौन कह रहा है? का शिया या अहले सुन्नत वाले मौला हुसैन के नाम पर कब तक सबीले लगाएंगे? पता नहीं गौर कर रहे या नहीं? कब तक सबीले लगाएंगे? का सबीले भी ना लगाओ बिद्दत है। अब उन्हें मौला हुसैन के नाम पर हर अमल बिद्दत नजर आएगा, हर अमल बिद्दत नजर आएगा। बाबा आप नहीं रोए, कब तक रोएंगे? कब तक रोएंगे? अब यहाँ पर कुरान हत्ता तकूना हारसन और तकूना मिनल हारिकीन, बाबा बीमार पड़ जाएंगे या बाबा दुनिया से चले जाएंगे। पलट कर क्या जवाब दिया? कुरान की आयत तो नहीं है ये, हाशिया काला, यानी हाशिया क्या है? यानी पलट कर बेटों को कहा, ऐ मेरे बेटो रोता मैं हूँ, तकलीफ तुम्हें क्यों हो रही है? बीमार मैं होता हूँ, तकलीफ तुम्हें क्यों हो रही है? हाथ हमारे सीने पर पड़ता है, दर्द मुल्ला के सीने में क्यों है? काला पलट कर हाथ हमारे सीने पर पड़ता है, तकलीफ और सीने में क्यों? आंसू हमारी आंखों से, मिर्चें किसी और आंखों में क्यों? अब गिरिया है, गिरिए का फलसफा अल्लाह बयान कर रहा है। काला इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, मेरे बेटों मैं रोता इसलिए हूँ, अपना गम अल्लाह से बांटता हूँ। यानी कुरान दस्तूर दे रहा है मजलूम के गम में गिरिया करना अल्लाह से गम बांटने का नाम है, अल्लाह से गम बांटने का नाम है। अल्लाह अकबर। ये जो आजादारी है ये सब एक तसल्सल है विलायत का। पता नहीं आप गौर कर रहे हैं या नहीं? तमाम सुन्नी शिया भाइयों के लिए तकरीर है, विलायत का एक तसल्सल है। हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के विलायत के साए में हर अमल अंजाम देते हैं, क्योंकि उठने में बैठने में उनकी विलायत ये है। अहले बैत की विलायत का तकाज़ा ये है, मुंह में झूठ ना बोले। अहले बैत की विलायत का तकाज़ा ये है, खालिक के कायनात को सजदा किया जाए। अहले बैत की विलायत का तकाज़ा ये है कि बुराई इंसान के करीब ना आए। तवज्जो चाहता हूँ, अब मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन इरशाद हो रहा है, सूरह कलम के अल्फाज हैं, अम नजअल मुस्लिमीना कल मुजरिमीन, क्या हम मुसलमानों को मुजरिमीन की मानद करार देंगे? तवज्जो चाहता हूँ, क्या हम मुसलमानों को मुजरिमीन की मानद करार देंगे? सैयदुल अंबिया का लक़ब अब चैलेंज कर रहा हूँ तालिब इल्म की हैसियत से, जाकर सुन्नी शिया किताबें देखें, हदीस देखें, सियाह सित्ता देखें, कुतुब अरबा देखें, दस बस्ता कर रहा हूँ। आखिरी नबी सैयदुल अंबिया का लक़ब शफीउल मुज़निबीन है, शफीउल मुजरिमीन नहीं है। नहीं, आप ऐसे नहीं सुनेंगे। मैं अभी तकरीर करने का आगाज करने लगा हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। तमाम कुतुब में देखिएगा पैगंबर का लक़ब शफीउल मुज़निबीन है, शफीउल मुजरिमीन नहीं है। यहाँ कुरान में क्या है?
अम नजअलुल मुस्लिमीना, क्या हम इस्लाम कबूल करने वालों को मुजरिमों की मानद करार देंगे? तो सहाबा कराम ने सवाल कर लिया। अब मैं हवाला भी दे देता हूँ, बड़े मुहक्किक बैठे हैं इसलिए सोचते रहे तमाम। अब यहाँ पर दुआएं लूंगा, आपके शहर में मेहमान की हैसियत से आया हूँ, दुआ लूंगा और बुजुर्गों से दुआ लूंगा। बच्चे इस जुमले को याद करें। इब्ने हजर अस्कलानी अहले सुन्नत का आलिम है। तहजीब में जुमला लिखता है, कायनात के रसूल से पूछा गया, या रसूल अल्लाह ये मुजरिम कौन से हैं? फरमाया मन अनकरा विलायता अली इब्न अबी तालिब फहुवा मुजरिमुन, जो अली की विलायत का इनकार करे वो है मुजरिम। लाख कलमे पढ़े, अल्लाह के रसूल उसकी शफाअत नहीं करेंगे। अल्लाह के रसूल गुनहगारों की शफाअत करेंगे, मुजरिमों की नहीं। ये नहीं है सूफियां भी पिए। क्योंकि विलायत का तकाज़ा ये है, हर नेकी अपनाए, हर बुराई से दूर हो। मेरे मोहतरम सामीन, जैसे ही 3 पेज का है खुतबा गदीर, मुझे कभी मौका मिला, क्योंकि 3 पेज का वो भी बारीक अल्फाज का, अगर मोटे अल्फाज से निकालेंगे तो 6-7 पेज बनेंगे। 3 पेज का है पूरा खुतबा। कभी मौका मिला तो आपकी खिदमत में पूरा खुतबा पढ़ा जाए। अल्लाह के रसूल को क्या दुश्वारियां थी, अल्लाह ने क्यों कहा वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, थे तो सामने नमाजी, हाजी, भाई 3 स्टार लगे हुए थे। पता है आप गौर कर रहे हैं, 3 स्टार, हाजी होने का भी है, नमाजी भी, सहाबी भी। अल्लाह कह रहे वल्लाह हो, इसका मतलब ये नहीं नमाजी की मुखालफत है, नहीं, नमाजी होगा अली का चाहने वाला, क्योंकि हमारे इमामों ने नमाज कायम की है, अहले ने नमाज कायम नहीं। इसलिए मौलाना नेशनल बलागा में फरमाया इन्ना इकामत सलात मिल्लत व दीन, नमाज कायम करना दीन है। जो नमाज नहीं पढ़ता उसके पास दीन ही नहीं है। तवज्जो चाहता हूँ। अब यहाँ किन से खतरा था? वल्लाह हो, यहाँ से मौका मिन अन्नास, अल्लाह तुम्हें इंसानों के शर से महफूज रखेगा। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामी, जैसे ही मैं गदीर नहीं पढ़ रहा, एक जुमला पढ़ रहा हूँ, उससे इस्तेमाल करना है मुझे, तवज्जो चाहता हूँ। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामी, अल्लाह अकबर, खुतबा देने के बाद अब यहाँ पर सब खुतबे को सुन रहे थे। 9 अफराद चले थे, 9 अफराद मौलाइयत का ऐलान सुनने के बाद कहीं और जगह चले थे, सहरा में। पता नहीं, अब मैं देखता हूँ कि आपका ज़ौक़ कितना साथ देगा मेरा। 9 अफराद चले थे। अच्छा, 1.25 लाख हाजियों के सामने, नमाजियों के सामने, साहबे कराम के सामने अल्लाह के रसूल ने जब ये ऐलान किया, फला सुन मन कुंतु मौला फहादा अली मौला, फला सुन मन कुंतु मौला फहादा अली मौला, फला सुन मन कुंतु मौला, एक को तकरीबन कई अफराद को अलग से खिताब करके कहा। यानी कायनात के रसूल बतलाना चाह रहे हैं, खबरदार अली की जगह कोई और ना बैठे। मौला की जगह कोई और ना बैठे। आखिरी मामले वाले को बैठते
खामोश है मेरे तमाम अज़ादार आखिरी अफराद। मैं क्योंकि दुआएं लेने के लिए आया हूँ, तवज्जो चाहता हूँ, खिताबत मुझे नहीं आती, सिर्फ दुआएं लूंगा। मैं छोटा सा तालिब हूँ। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, हर एक को कहा कि देखो मन को तो मौला फहादा अली मौला, ये वजह क्या है। फिर बैअत का सिलसिला शुरू हुआ, बड़े बड़े आए, मौला अली के हाथों बैअत करने लगे, बैअत करने लगे। एक मर्तबा मर्दों की लाइन थी, दूसरी कायनात के रसूल ने तश्त में पानी में अपना हाथ रखा, और एक मर्तबा मौला अली का हाथ भी उसमें डबो कर का जाकर खवातीन को ये तश्त का पानी उसमें अपना हाथ डबोए। ये गोया हाथ डबोना नहीं था, ये अली के हाथों बैअत करना था। खबरदार कोई औरत अली के मुकाबले में ना निकले। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, बड़ा खूबसूरत अंदाज है आपके सुनने का। 9 अफराद खुतबे के बाद गए, जाने के बाद एक मर्तबा सहराई तो जमीन को थोड़ा खोदने लगे, गोह नजर आया। भाई गोह को समझते हैं ना, छिपकली से बड़ा होता है। कहने लगे कि ये ज्यादा बेहतर है, काश विलायत का ऐलान ना सुनते। ये गोह ज्यादा बेहतर है, काश ये मुहावरा है ना अरबी में। अब एक मर्तबा जनाब सलमान जनाब अबू ज़र ने इनकी बात सुनी, अल्लाह के रसूल को आकर कहा या रसूल अल्लाह, इन्होंने क्या जुमला कहा, ये गोह बेहतर है, सूसमार, फारसी में उसको सूसमार कहते हैं, कहा ये सूसमार ज्यादा बेहतर है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बुलाओ इन 9 को बुलाओ, तवज्जो साहब, इन 9 को बुलाओ, इन 9 को बुलाओ। क्या तुमने ये बात की थी, क्या तुमने ये बात की। उन्होंने कहा क्या, यहलिफूना बिल्लाह है, कसम उठाकर कहने लगे माँ कालू, हमने नहीं बात की। पता नहीं आप गौर कर रहे हैं नहीं, कुरान की आयत है, यहलिफूना बिल्लाह है, कसम उठाकर कहते हैं माँ कालू, हमने ये बात नहीं की। तो अल्लाह ने कहा हबीब लक़द कालू कलिमतल कुफ्र, इन्होंने कलमा कुफ्र अदा किया है। लक़द कालू कलिमतल कुफ्र, इन्होंने कलमा कुफ्र अदा किया है। और ये सब काफिर बाद इस्लाम है, ये काफिर हो गए इस्लाम लाने के बाद। अब कोई तो कहे कि दोबारा कलमा पढ़ा है या नहीं। काफिर बाद इस्लाम में है, वह हमू लम यनालू, जो वो चाहते थे वो नहीं हुआ, जो वो चाहते थे वो नहीं हुआ। मौदूदी ने इस आयत की तफसीर में लिखा है, शायद कोई ऐसे थे जिन्होंने कहा, गधे को देखकर कहा नबी ने जो कुछ हक पहुंचाया उससे बेहतर ये हमारे लिए गधा है। पता नहीं आप गौर कर रहे हैं नहीं, यानी वो ऐसे थे। कोई तो बात जब गधे की आ गई, मेरा दिल चाहते जुमला कहूं। खैबर में मौला ने 3 को वहां से ले जाना किया था। असल में 5 भाई थे, और मरहब की माँ बहुत बड़ी काहिना थी, बहुत बड़ी काहिना थी। और सितारे नजूम से हिसाब करके कहा कि मुझे हिसाब किताब के जरिए से, असल में मुझे इस बात आ गई है कि वो बात पहुंचाना है। हिसाब किताब करके कहा कि बेटो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती, लेकिन खबरदार हैदर नामी शख्स से न लड़ना। खबरदार हैदर नामी शख्स से ना लड़ना। और 5 बेटे इसके पहलवान थे, 5 बेटे इसके पहलवान थे। अब यही वजह है, मरहब अंतर के बाद, अंतर और हारिस के बाद मरहब ने जब देखा ना कि मौला ने रेस पड़ा है, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, वापस बढ़ता। तो अब जाहिर है इसको भी वहां से ले जाना किया। यहाँ एक मरहूम ज़ाकिर कहा करते थे, ये इतनी तेजी से दौड़े, जहाँ तेजी से दौड़े हैं वहां से पेट्रोल निकला है,
जहाँ रोक रोक के बैठे हैं वहां से सीएनजी निकली है। तवज्जो चाहता हूँ मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन। अब जब खैबर खत्म होने के बाद जहाँ जानवर थे यहूदियों के, वहां पर एक गधा था जिसका नाम था याफूर। तवज्जो चाहता हूँ, गधा था जिसका नाम था याफूर। एक मर्तबा कल्लमा याफूर हिमारुन, कल्लमा याफूर, याफूर ने कायनात के रसूल से कलाम किया। क्या कहा? इन्ना अजदादी यहमिलु अला सफीनत नूह। और इल्म के शौकीन है, तवज्जो चाहता हूँ। गधा याफूर क्या कहने लगा? इन्ना अजदादी यहमिलु अला सफीनत नूह, मेरे अबा अजदाद में जो मेरा ऊपर वाला परदादा था, यहमिलु अला सफीनत नूह, जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा इंसानों के अलावा का कोई भी आकर कश्ती में बैठ सकता है, तो मेरा जब आला उस कश्ती में सवार हुआ था, जैसे कश्ती में सवार हुआ तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने मेरे जद से कहा था तुम्हारी ही नस्ल में एक ऐसा गधा होगा, आखिरी नबी उस पर सवारी करेंगे। चाहता हूं कि सवारी करेंगे कि आज तक मेरी ख्वाहिश है, मैंने किसी यहूदी को सवारी करने नहीं दिया, मेरी ख्वाहिश है आखिरी नबी आप सवारी करें। अल्लाह जाने जुमला कहूं कि मुसलमान टुकड़ों पर पलने वाले को पता नहीं है कि ये नबी है, और गधे को पता है कि इसकी मंजिल और है। एक मर्तबा का आप सवारी करें। अब अल्लाह के रसूल ने इस पर सवारी भी की, याफूर गधे पर सवारी भी की। और फिर मदीने में जब अल्लाह के रसूल खुतबा दे रहे होते थे, मेरे खामोश मोमिन जरा गौर से सुनिएगा, और मैं चाहता हूँ आप खामोश रहे, पता नहीं आप गौर कर रहे हैं नहीं। अब अल्लाह के रसूल जब खुतबा देते थे, एक मतलब साहब कराम खामोशी से सुनते थे या नहीं? इसका मतलब ये नहीं कि आप खामोश ही रहे। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल जब खुतबा देते थे, तो अब अगर किसी को तलब करना होता था, अगर यहाँ का कोई फर्क, मुझे खुशी है आप तवज्जो से समाप्त फरमा रहे हैं, अगर यहाँ महफिल बज़्म से रसूल की मजलिस से अगर कोई शख्स भेजा जाए, तो जितनी देर सैयदुल अंबिया आखिरी नबी कलाम कर रहे हैं, एक एक लफ्ज मोती, एक एक जुमला जिंदगी बदलने वाला, उतनी देर तो वो महरूम हो जाएगा कलाम रसूल से। तो अब तलब करना होता था तो क्या, ये गधा मस्जिद के बाहर दरवाजे पर खड़ा होता था, बाहर। जैसे अल्लाह के रसूल फरमाते थे फला क्यों नहीं आया मस्जिद में, पता नहीं आप गौर कर रहे या नहीं? अल्लाह के रसूल क्या फरमाते थे कि फला क्यों नहीं आया। जैसे हमारे ज़मीर भाई कहते हैं नमाज में फला नमाजी क्यों नहीं आया, अल्लाह के रसूल फरमाते थे कि फला क्यों नहीं आया। उस गधे को हुक्म देने की जरूरत नहीं होती थी, गधा खुद चल पड़ता था। जब जाता था उसी के दरवाजे पर जिसको अल्लाह के रसूल ने तलब किया है, जाकर अपना सार मारता था। तो घर वाले जब देख कर कहते थे याफूर आया है, यकीनन रसूल ने तलब किया है, यकीनन रसूल ने बुलाया है, इसलिए तो याफूर हमारे दरवाजे पर आया है। भाई अकीदत की बात है सफदर भाई, कितना अकीदत की बात है। मैं उसे गधा कैसे कहूं जो रसूल की बात समझे और माने। भाई अकीदत की बात है, अकीदत की बात है। मैं उसे गधा कैसे कहूं जो रसूल की बात समझे और फिर अमल करे, और उसे इंसान कैसे कहूं जो बज़्म में बैठे और रसूल की बात न माने। रहे हैं क्योंकि जाहिर है छोटा सा तालिब बड़ा पछताएंगे ये
یہ رسول کی بات سنتے ہیں عمل نہیں کرتے. یوم سورہ فرقان کے الفاظ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یعض الظالم علی یدیہ ظالم اپنا ہاتھ کاٹیں گے ہاتھ کاٹ کر